अमेरिकी महकमा दिफा का कहना है कि वो ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहता, लेकिन साथ ही मशरक़ वस्ता में अपने जंगी साजो सामान को बढ़ा भी रहा है। जुम्मे के रोज़ पेंटागन ने पेट्रियट मिसाइल निज़ाम और जंगी बहरी जहाज USS आर्लिंगटन को मशरक़ वस्ता रवाना करने का ऐलान किया। इस वक्त पहले ही अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS लिंकन मशरक़ वस्ता पहुंच चुका है और अमेरिका के 4 B-52 बॉम्बर्स भी कतर में अमेरिका के फौजी अड्डे पर उतर चुके हैं। पेंटागन के मुताबिक ईरान से जमीन और समंदर पर खतरा है और ईरानी फौज कमर्शियल कश्तियों को मुमकिन तौर पर हथियारों से लैस कर रही है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी से मुंसलिक केली थॉमस से। केली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो टुडे। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर्स, द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन द वाटर्स नियर द UAE. What kind of repercussions can it have for regional security and also for the tensions that we see right now between Tehran and Washington? Thank you so much for having me today. This is definitely concerning, and if those Saudi oil tankers were actually sabotaged by Iran, it's not something that's outside of their playbook, and it's the kind of action that we can expect to see potentially over the next couple of months as the U.S. also continues its escalatory actions. Iran will and sensibly try to build leverage as the U.S. seeks to bring it back to the negotiating table. राइट, सो केली कहती हैं कि एक परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर है और उनका कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा ही किया है और जो केली के मुताबिक ऐसा एक हथकंडा है जो ईरान इस्तेमाल कर सकता है, तो ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल इससे डेवलप होगी। ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसकी वजह से फिर अमेरिका भी जो उसके कह लीजिए एस्केलेशन जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही हैं उस इलाके में, वो उसी तरह जारी रहेंगी, यानी जो दर्जा हरारत है इलाके का वो बढ़ता ही रहेगा। सो केली, इफ द एंड गोल इज टू ब्रिंग Tehran to the negotiation table and to have Washington and Tehran discuss any prospects for a future nuclear deal or any change in what the US calls Iran's perceived negative behavior, how would that even be possible, especially given the level of escalation right now? Yes, what we see is the United States pursuing a maximum pressure strategy, but something that is very heavily reliant on incendiary rhetoric, as well as these intense and punishing economic sanctions. But without, multilateral action with our allies and partners, and without kind of diplomatic engagement of Iran, these are the things that brought Iran to the negotiating table, 4 years ago. It's unlikely to see a new and better deal come out of the situation. Mm-hmm. So would you say that they need, again, to go back to diplomatic tools, or would you say that these tactics could put the pressure that would bring them to the table? I think these tactics are only going to take us farther down an escalatory path, and that we need these diplomatic tools in order to actually come to a new deal. All right, so केली कहती हैं कि जहाँ तक अमेरिका और तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की बात है, तो जिस किस्म के इस वक्त कह लीजिए कि तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें इंतहाई दबाव डाला जा रहा है वाशिंगटन की जानिब से, बहुत सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और उसके अलावा माशी पाबंदियाँ भी बहुत ही ऐसी हैं जो तेहरान के लिए बहुत तकलीफदेह हैं, तो ये ऐसे इकदाम हैं जो तेहरान का भी मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करेंगे और दोनों जानिब से ही जो टेंशन हैं वो बढ़ेंगी। इसलिए अगर कुछ ऐसे किस्म के हालात चाहिए, ऐसा मुआहदा चाहिए जो 4 साल पहले यानी 2015 में बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ किया था ईरान ने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिफारती रास्ते जो हैं वो अपनाए जाएँ। To what extent do you think Washington and Tehran can afford to escalate these tensions? Because Jeremy Hunt, who's the foreign minister of Britain, he today said that there is even a chance that the two countries could enter a conflict by accident. Yes, so I don't think either the United States or Iran actually want to go to war, but we are entering amid these tensions. We're increasing the risk that there is a miscalculation on either party's part. And as the U.S. is very much kind of acting alone and without the support of its European allies or its partners in the region, which also wouldn't benefit from a large-scale escalation, we need to start kind of pulling back these actions, both on the United States part and Iran. And it's really up to, I think, to the Europeans to force one of them to kind of act first in that regard. All right. So हेली कहती हैं कि दोनों ही मुल्क जंग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इस वक्त गलती का इम्कान भी अपनी जगह पूरा है। और दूसरा ये कि चूंकि अमेरिका तन्हा इन एक्शंस को इस वक्त आगे लेके जा रहा है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से उसको भरपूर हिमायत हासिल नहीं है। हमने देखा भी यूरोपीय यूनियन की फेडरिका मोगेरिनी ने भी कहा कि वो जो न्यूक्लियर डील है उसकी हिमायत करती हैं। तो इसलिए अगर कुछ नुकसान होता है तो उससे अमेरिका के लिए सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसके एलाइज इस एफर्ट में साथ नहीं हैं। और इसी वजह से अब ये देखना होगा कि क्या जो यूरोपियंस हैं इस वक्त वो दोनों पार्टीज़ को, अमेरिका को भी और तेहरान को भी यानी ईरान को भी मुज़ाकरात की मेज़ पे ला पाते हैं या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ मच क्लाउड डू द यूरोपियंस हैव?
Right now, with the Trump administration itself, I mean, it remains to be seen. They've definitely had a rocky relationship on not just Iran, but on many other issues as well. They are the ones, however, providing, any benefits to Iran within the existing JCPOA. They've supported Iran thus far, and they've really tried to be that mediating actor. And so I think we need to at least see an effort, whether or not that's realized, to say to both parties, we need to start pulling back. तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यूरोपीय यूनियन का कितना असर रसूख है इस मामले में, तो केली कहती हैं कि जहाँ तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात है तो वो बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं है। बहुत से मामलात पे दोनों के दरमियान एक तनाव पाया जाता है, इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ही वो वाहिद कह लीजिए फ़रीक है जो अमरीका और तेहरान दोनों से बातचीत कर रहा है और जो न्यूक्लियर माहिदा है उस पर ईरान के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहा है। सो इस वक्त कह लीजिए कि उनके हाथ में ऐसे कम अज़ कम कुछ कार्ड्स ज़रूर हैं जिनके ज़रिए वो इस मामले पे किसी किस्म का तस्फिया कराने की पोजीशन में है। केली थॉमस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you.